Morning, everyone, and welcome to this platform where we are all here together to achieve happiness on this journey of life. So, today we'll be discussing about a very relevant topic of this time period of Pitra Paksh. ये 16 दिन का पितृपक्ष होता है. I'll be speaking in English as well in Hindi simultaneously. Today we'll also get to know whether our ancestors are happy with us. Whether हमारे मन में कई बार ख्याल आता है कि वो खुश हैं जहां पर भी हैं, आर दे इन पीस. तो कई बार हम सोचते हैं कि हम शायद अपने जो एंसेस्टर्स हैं, जो पूर्वज हैं, जो चले गए हैं, कि क्या हम उनके लिए ऐसा कर देते, शायद हम उनके लिए ये कर पाते, हम उनको ऐसे बोलते. हमारे मन में कई आफ्टर थॉट्स आते हैं, कई गिल्ट फीलिंग हो जाती है और उनसे हम बाहर नहीं निकल पाते. कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स अच्छा या बुरा, उन्होंने हमारे लिए ये नहीं करा, ऐसे नहीं किया, ये नहीं बोला हमने. तो मुझे भी कई व्हेन माय मदर पास्ड अवे, मुझे भी कई ख्याल आते थे कि मैं शायद उनके लिए ये कर पाती या उन्होंने मुझे ये नहीं कहा. But then later I realized that we are all connected through soul, and that one soul. So we can always talk to them, we can always relate with them, and they are always around us. तो कुछ भी इसमें डरने घबराने की बात नहीं है. They are always near us and they are protected. Plus they have their own journey of life. It is actually a journey of the soul. Parents and teachers are there just to guide us, to help us. But it is our journey, how we take it further to achieve that ultimate reality in life. And that is the journey of the soul. एक वही ultimate destiny है हमारी, जिस पर हम सबको पहुंचना है. तो ऐसा हमें बार बार जो फीलिंग आती है मन में कि हम ये कर लेते और वो कर लेते, दैट फॉर्म्स अ सर्कल ऑफ बिलीफ सिस्टम. एक पैटर्न बन जाता है हमारी लाइफ में, एंड वी स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग सम अनहैप्पीनेस. कुछ दुखद घटनाएं हो जाती है हमारी लाइफ में और हमें समझ नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है हमारी लाइफ में. तो since in this new era and this fast paced life, we are so busy, we are caught up in our life, we are stuck somewhere. और हमारे पास तो टाइम नहीं है ना, आजकल कोई मानता है इनको कि हम रोज मंदिर जाएं और पूजा पाठ करें और रिचुअल्स में बैठ जाएं. तो पूजा पाठ और इस सब को हम सोचते हैं कि ये सब व्यर्थ है, या फिर अभी टाइम नहीं है, हम बाद में कर लेंगे, या अभी हमारी उम्र नहीं है ये करने की. बहुत सारी सोच आती है हमारे मन में. बट एक्चुअली द थिंग इज दैट वी गेट कंफ्यूज. हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सही मान्यता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. And I'm not just saying just because I have to say, but I have done a lot of research into this topic. तो हमें लगता है कि हमारी लाइफ इनकम्प्लीट है. We all are stuck in our lives somewhere or the other. And this incompleteness in our life goes on to many, many years, maybe many lives and janmas. Punarapi jananam, punarapi maranam. पुनरपि जननी जठरे शयनम. मतलब एक के बाद एक लाइफ आती है और ये सब चलता रहता है. अधूरे रिश्ते, अधूरी दोस्ती, अधूरी कहानी. और ये अधूरी कहानी लेकर हम जाते हैं किसी गाइड के पास, किसी गुरु के पास, some astrologer, and we ask for some solution. हमें समझ नहीं आता कि ये कहाँ पे इनकम्प्लीटनेस है. और वही कहानी जो है वो आगे चलती जाती है. तो हमें बताया जाता है कि कोई दोष है या समथिंग. तो actually now that I am talking about this ritual, what we are doing today about Tarpanam, it is not just happening in India, but this is all over the world. Some parts of European countries are doing this, African countries are doing this, Asian countries, Indonesia and Thailand, some parts of, and Korea. They all are into ancestral ritual practice. Ancestors के लिए prayers की जाती है. Egypt was known for this.
long time back. तो जब विल स्मिथ, the famous Hollywood actor, he performed the ancestral rites. He came to India and performed the ancestral rites क्योंकि उनको कुछ प्रॉब्लम चल रही थी अपनी लाइफ में. Sylvester Stallone, the famous, he's a politician also and he's a famous actor. When he lost his son, so he came to India. He used to see his son every day and every night in his dreams, and his son was quite unhappy. So he came to India to perform his Tarpanam ritual. और उसके बाद से वो बिल्कुल ठीक हो गए. So, and all this is all scientific. As I said, I have been following this practice for quite some time, and being a student of philosophy and psychology, and I'm studying Bhagavad Gita. So it is all mentioned in Bhagavad Gita and Bhagavatam, in Ramcharitmanas, कि जब सीता जी ने भी अपने ससुर जी का श्राद्ध किया खुद, तो कैसे दशरथ जी बाहर आए, दोनों हाथ लेकर, ऊपर हाथ उन्होंने अपने ऊपर करे और उन्होंने स्वीकार करा उनका दान जो वो कर रही थी तर्पण. So this is all it is there. Like ये कई जन्मों से होता आ रहा है. It is not कि मैंने या आपने बनाया या पंडितों ने बनाया, ऐसा कुछ नहीं. Yes, they may have taken it to some other way, so it is up to them. But this is all the language of feelings. आपके भाव, आपके फीलिंग्स मैटर करते हैं. आप सिर्फ जल से भी कर सकते हैं, आप अपने खुद के घर में भी कर सकते हैं. You don't need any big ritual for this. What is required, क्योंकि ये हमारी पुण्य धार्मिक भूमि में ये पितृ संस्कार की मान्यता है. तो जैसा कई बार हमें लगता है कि एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि अरे ये तो अपनी मम्मी की तरह बोलती है, ये तो दादा दी की तरह चलता है. So there is some part of them in you. Always remember, there is some part of them is you. The whole idea is that you are wishing good for them, and they are your ancestors and they are blessing you. तो जहां पर भी कुछ कमियां रह जाती हैं, आप बस पूर्ण विश्वास के साथ, पूरी आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ आपने करना है with that value system. Because अक्सर हम भूल जाते हैं कि उन्होंने हमें क्या सिखाया, वो क्या बोल के गए, वो क्या चाहते थे करना. तो अगर हम उन्हीं के आदर्शों को पालन करते हैं, मगर उन्हीं को मानते हैं with gratitude, because we are because of them, अगर हम वो करते हैं, तो जैसे बोलते कि बहुत तरह के ऋण होते हैं, पितृ ऋण, मातृ ऋण, ऋषि ऋण. तो पितरों का ऋण भी एक प्रकार का ऋण है. हम उनको भी उस ऋण से मुक्त करते हैं. Because they are also stuck somewhere. The souls are stuck somewhere. Please understand. They have attachments. जो 5 तरह की वासनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मोह रह जाता है, मन नहीं मरता. That is why they come again and again and again in the same family. They are always around you, near the house. You can feel them. क्योंकि वो जुड़े होते हैं सबके साथ. वो देख नहीं सकते कि कोई परेशान है या कुछ. So they are always connected. Wow. They are always connected to you. तो हमें उनको भी मुक्त करना है. उनकी जर्नी में उनको भी आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करना है. They are also stuck somewhere, and we need to free them from attachment. क्योंकि वो अगर अटैचमेंट से मुक्त होंगे, तभी वो अपनी आगे की सोल जर्नी में बढ़ेंगे. They will reach into the divine light and they will bless you. तो आपके जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं लाइफ में, कुछ परेशानियां हैं, इट इज दैट बिकॉज ऑफ दैट बिलीफ सिस्टम. और कहते हैं कि 2 तरह से आप अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनका निवारण कर सकते हैं. एक तो ये तर्पणम विधि होती है, जिसमें आप, क्योंकि वो जो बिलीफ सिस्टम उनके थे, वो आपने भी लिए हैं, कुछ ऐसी चीजें जो कैरी फॉरवर्ड होती हैं जीन्स में, और कुछ आपके कर्म जो आपके प्लैनेट्स चलते हैं जैसे, इट इज बिकॉज ऑफ दैट. तो ये एक तरीका है कि आप
जो उनकी सोच जो आप में भी है कुछ हिस्सा, उससे भी बाहर आए और उनको भी आगे मुक्त करें बढ़ने के लिए, एंड दैट इज सो इम्पोर्टेंट। सो इसमें बोलते हैं कि हमें गाय को कुछ देना चाहिए, चारा देना चाहिए, या गाय को आप कुछ खाना दे दें, भोजन दे दें, रोटी दे दें। क्रो को माना जाता है, क्रो इज सिंबॉलिक ऑफ द गॉड, और उसको माना जाता है कि वो पितरों का रूप है जो आता है कुछ लेने के लिए आपसे, तो आप उनको भी दे सकते हैं। और अग्नि को साक्षी मान के आप अग्नि को भी तर्पणम दे सकते हैं। आप देवी देवताओं का नाम लेके, या जिसको वो मानते थे आपके पूर्वज, जिस भी गुरु को, जिस भी भगवान को वो मानते थे, उनका मंत्र जाप करके आप ये तर्पणम कर सकते हैं। या फिर आप किसी दिव्यांग को दे सकते हैं उनका नाम लेके, जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, जो जिनको फिजिकली हैंडीकैप बोलते हैं, उनको आप दे सकते हैं उनका नाम लेके। द होल आइडिया इज दैट यू आर डूइंग गुड to somebody by taking their name in the name of God and you perform the ritual. तो उनको कहीं ना कहीं शांति मिलती है, उनको उनको कहीं मुक्ति मिलती है, that you are following their values and you are doing what they really wanted you to do, because वो भी कहीं ना कहीं पर रुके हुए हैं। तो उनकी यात्रा में उनके लिए प्रेयर करें कि अब आप अपने जो सोल जर्नी है उसमें आगे बढ़ें, and may you find peace and happiness. तो सबसे बड़ा दान कहा जाता है कि अन्न दान है, बट उससे भी बड़ा होता है ज्ञान दान। तो जब आप उनको ये ज्ञान दान देते हैं अपने एंसेस्टर्स को, so they feel so relieved and they are released of their sins जो भी उन्होंने किया। So just forgive them and please ask for forgiveness from them, from the God, for them. तो आप भगवान से उनकी मुक्ति, उनकी शांति, उनके लिए क्षमा भी मांग सकते हैं। आप खुद को भी क्षमा कर सकते हैं, जो कुछ अगर आपने उनसे कभी बुरा भला कहा सुना मन वचन कर्म से, तो वो भी आप खुद को भी माफ करिए, उनके लिए भी क्षमा मांगिए और उनसे भी क्षमा मांग के आप ये रिचुअल करिए। बिकॉज मुझे लगता है कि माँ बाप का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता, बट जब आप ये ज्ञान दान, जब आप उनके लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, तो वो एक तरीके से मुक्त होकर अपने आगे की जो यात्रा है, जो जर्नी है उनकी स्पिरिचुअल जर्नी, उसमें वो आगे बढ़ते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप संकल्प करें। अब गीता का 7 और 8 अध्याय माना जाता है, इसमें वो पढ़ सकते हैं, उनके लिए वो इसमें पढ़ा जाता है। और आपको करना क्या है, सो आई हैव इसमें चावल या चावल का आटा ले सकते हैं। इफ यू हैव टाइम यू कैन गेट राइस। वी विल जस्ट डू द रिचुअल नाउ and you will see that how peaceful and how positive you will feel after this. 1 मिनट लगेगा अगर आप चावल ले आए, नहीं तो आई एम जस्ट डूइंग दिस, यू जस्ट फॉलो मी। ये मैंने ऐसे तैयार करके रखा है ये। सो इट इज व्हाट आई एम टेकिंग इज, तिल में एटॉमिक पावर होती है, उसमें एटॉमिक एनर्जी होती है, काले तिल। आई हैव टेकन दैट ब्लैक सेसमी, एक कॉइन। इसमें सिल्वर को बहुत पवित्र माना जाता है, तो आई जस्ट टेकन अ कॉइन। इट इज सिंबॉलिक, नहीं हो तो भी ठीक है। दुर्बा ग्रास मानते हैं इसमें सिंबॉलिक, एंड इट इज वेरी प्योर। नहीं है तो भी ठीक है। और few drops of water. So that is what I am doing here. So if you can see, I have taken rice flour. आप चावल भी ले सकते हैं, मैंने चावल का आटा लिया है, काले तिल और थोड़ा सा पानी का छींटा दिया है। It is with a coin. Coin is optional. So all this is symbolic. The main thing, as I said, is your feeling. आप क्या सोचते हैं उस समय, आपके भाव में क्या है। मतलब ये नहीं है कि आपने बस
ये सोचा कि चलिए पंडित जी को जाकर आप दे दें और बोलें कि ये फटाफट कर देना बस। मनी इज नॉट द थिंग इन दिस, इट इज हाउ यू फील एंड हाउ यू डू। सो आप ये सिर्फ जल से भी कर सकते हैं। अगर आप हाथ में पानी लेकर अपने राइट हैंड में एंड जस्ट से दैट, मैं हिंदी में भी बोलूंगी और इंग्लिश में बोलूंगी। सो फर्स्ट आई स्टार्ट विद इंग्लिश। I invite, I call upon Lord Vishnu and the 6 generations of my ancestors to come, accept this offering and merge into the divine light. May you be free from all evils. May you be in peace. और आप आंख बंद करके आप जो सोचना चाहते हैं उनके लिए, आप कुछ कहना चाहते हैं उनको जो आप उस समय नहीं कह सके, तो आप कहिए। आपके father side, आपके mother side, and all your loved ones who passed away. You can pray for them with closed eyes or open eyes. It's your wish. But just give it a thought that you are doing for them with that feeling of reverence, respect, and humility, and with a lot of gratitude. मैं आमंत्रित करती हूँ अपनी माता की 6 पीढ़ियाँ, मेरे पिताजी की 6 पीढ़ियाँ, और जो मेरे प्रियजन अब इस दुनिया में नहीं है, कृपया ये भेंट स्वीकार करें और प्रकाश की ओर अग्रसर हों। आपको परम सुख, परम शांति प्राप्त हो। ओम तत्सत। ओम सतगति। ओम शांति शांति शांति। Now I will wash my hands here only. Later I'll wash. और जो मंत्र जाप जिनको वो मानते थे, हरे कृष्ण, या जिनको भी, जो उनके भगवान जिनको वो मानते थे, या जो कोई मंत्र अलग से आप अपने लिए खुद के लिए आप सोचते हैं करना है, वो आप करें। और जो वो चाहते थे वैसे आदर्श बनाए, तो उसी में उन्हें परम सुख, परम शांति मिले। दैट इज द रिचुअल। ये आप खुद से घर पे भी कर सकते हैं, आप मंदिर में जाके कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ कर सकते हैं, आप अग्नि को साक्षी मान के तर्पणम कर सकते हैं। इस रिचुअल को तर्पणम बोलते हैं, जो हम अपने एंसेस्टर्स के लिए करते हैं, उनकी शांति के लिए, ताकि वो आपको, वो खुद भी अपनी यात्रा में आगे बढ़े और आपको भी खुशियाँ, आपको भी सुख दे। सो अब हमारा मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। मे यू ऑल बी ब्लेस्ड एंड हैव अ ग्रेट मैजिकल डे। कोई कुछ पूछना चाहता है पूछ सकते हैं, तो फिर हम rejoin. Any questions? So great. Have a great magical day today and wish you all a very happy life, fulfilled life, I would say. Have a blessed day. Thank you, dear.